Jaya Bhakti Janavara Girivara Jayo Yashodanandana Jayo Raja Janaranjana Jayo Raja Janaranjana Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yamuna Tiravanachari Jayo Jabihari Jayo Yamuna Tiravanachari Jayo Jabihari Vanachari Jayo Radha Jaya Jabihari Jaya Radha Madhava Jaya Jabihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Oh Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana
Jaya Radhe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakavitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagat Patre Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surata Pangur Mama Manda Matergati Matsarasva Padam Bojao Radha Madan Mohano Divyad Vrindaranya Kalpadrumada Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Shila Govinda Devo Prishtalivi Svyamano Smarami Shriman Rasa Rasarambi Vamshivata Tatastitaha Karshan Venu Svanair Gopir Gopinata Shriyestunaha Tapta Kanchana Gorangi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sarva Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Shri Guru Varanga Jayataha Shri Shri Radha Krishna Bhyam Namaha. We are offering our most humble obeisances to all assembled Vaishnavas, to our spiritual masters, Lord Gauranga and their Lordship Shri Shri Radha Krishna. सभी उपस्थित वैष्णवगण गुरुजन श्री प्रभुपाद श्री राधा श्याम सुंदर माधव जी सभी को प्रणाम करते हैं। सुनाई पड़ रहा है? आवाज आ रही? हिंदी वाले भाषी सुन पा रहे? सुन पा रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। We have assembled today for the second day to celebrate Nityananda Trayodashi. तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें द्वितीय दिवस मिला है ये उत्सव मनाने के लिए। And this school is very auspicious place to celebrate the appearance of Adi Guru. और ये चूंकि ये विद्यालय है और विद्यालय में आदि गुरु के आविर्भाव का उत्सव मना रहे हैं, ये बड़ा शुभ लक्षण है। To remind us that Guru means to be merciful. जिससे हमें स्मरण रहे कि गुरु जो है वो बहुत कृपालु होते हैं and to be very much knowledgeable. और बहुत ज्ञानवान होते हैं। And we see that even in pastimes of Lord Balaram. और बलराम जी की लीला में हम देखते हैं इस बात। Because Ramaharshana Sutta was
very much proud because of his scholarship, and due to that, he didn't offer obeisances and didn't recognize Adi Guru. हम देखते हैं बलराम जी की लीला में कि रोमहर्षण सूत जो अपने ज्ञान पर उनको बहुत अहंकार था और उससे इतने वो आच्छादित हो गए थे कि वो आदि गुरु बलराम जी को नहीं पहचान पाए, And therefore he was destroyed by Lord Balaram. और इसीलिए बलराम जी ने उनका नाश कर दिया. And all assembled rishis, munis and pandits, they were shocked. और वहां पर जितने भी ऋषि मुनि उपस्थित थे वो सभी लोग बड़े आश्चर्य अचंभित हो गए. And they said, who will teach us? Who will now teach us? और उन्होंने कहा कि विनती किया कि अब हमें कौन शिक्षा देगा. And Lord Balaram, to prove that he is Adi Guru, he have installed the son of Ramaharshana Sutta, Ugrashrava Sutta, who was at that time only a small boy and who was walking around naked as a guru, as a representative of Srila Vyasadeva. और तब बलराम जी ने, जो कि आदि गुरु हैं, वो उन्हीं के पुत्र जो उग्रश्रवा सूत थे और बहुत छोटी अवस्था थी, वहां पर ऐसी बिना वस्त्र के घूम रहे थे, उन्हीं को शक्ति प्रदत्त करके और व्यास आसन पर बिठा दिया. And Lord Balaram immediately instilled his heart with full knowledge of Vedas. रूप से वो बहुत छोटे बालक थे, छोटी अवस्था थी, उतना परिपक्व ज्ञान भी नहीं था. Everyone was shocked about the knowledge he got from Lord Balaram. लेकिन सब लोग अचंभित हो गए देख करके कि जो उनको बलराम जी से कृपा प्राप्त हुई और कितना ज्ञान उनके अंदर संचार हुआ. And Lord Balaram proved that he, as Adi Guru, is Akhanda Guru Tattva, that he is complete manifestation of spiritual master, and he can reveal that knowledge to everyone within his heart. और बलराम जी ने यहाँ पर प्रदर्शित किया कि वही आदि गुरु हैं और किसी भी जीव के अंदर वो परम तत्व का ज्ञान संचार कर सकते हैं. And Lord Balaram have also taught us that Guru Tat doesn't mean to be just learned in scriptures and to have a lot of knowledge, but also means to respect the predecessor acharyas in that service of humility and attitude, approach Vedas and then understand them. तो बलराम जी केवल आदि गुरु हैं. केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं बल्कि शिक्षा दे रहे हैं वो इस लीला के माध्यम से कि शास्त्रों का ज्ञान ही केवल पर्याप्त नहीं है, उसके साथ ही साथ में कैसे पूर्ववर्ती आचार्यों का हमें सम्मान करना चाहिए, जो हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं उनका सम्मान करना चाहिए, सभी वैष्णव नियम का पालन करना चाहिए, ये सब भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए. And yesterday we were hearing that Lord Nityananda was very much pleased by Krishnadas Kaviraj Goswami with his devotional attitude, and therefore have instructed him to go to Vrindavan and take shelter of 6 Goswamis. और कल हम सबने श्रवण किया था कल संध्या काल को कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर जब नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया तो उनकी कृपा के माध्यम से ही उनको वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. So yesterday we were explaining about Panchatattva and how different personalities in Panchatattva are actually all gurus for us, and each one of them is having very specific and unique role in our life. और कल हमने ये भी श्रवण किया था कि पंच तत्व के बारे में, उनकी प्राप्ति अभी शुरुआत हो चुकी है पहले अद्वैत सप्तमी से और आगे बढ़ रही है, और इनका बहुत योगदान है हम सबके जीवन में. इन्हीं की कृपा से ये भक्ति के अलग अलग जो तत्व हैं, अंग हैं, उनसे हम समझ करके और इस भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. And although Chaitanya Charitamrita is especially explaining the truths of 5 aspects of supreme reality, Panchatattva, the Chaitanya Charitamrita is starting with Vande Gurun. चैतन्य चरितामृत में कल हमने ये भी देखा कि वो 5 तत्वों को स्थापित किया जा रहा है, उसमें पंच तत्वों को जो परम
परम तत्व के, परम सत्य के 5 पहलू, लेकिन जो आरंभ होता है चैतन्य चरितामृतम का वो होता है वंदे गुरु, गुरु तत्व से। Because devotional service starts with pleasing spiritual master. And when spiritual master is pleased, then Lord Krishna is also pleased. क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है गुरु की प्रसन्नता से। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। And Guru is such a unique personality who never accepts service from Krishna, but Krishna, just to offer him some service, therefore is very pleased if disciples are offering service to Guru. हालांकि गुरु को कुछ शिष्यों से सेवा नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई शिष्य गुरु को सेवा देते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो शिष्यों से सेवा ग्रहण करते हैं। वंदे गुरुम ईश भक्तम ईशम ईशवतारकम तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम. We are offering our humble obeisances to the Supreme Personality of Godhead known as Shri Krishna Chaitanya, who have appeared as Supreme Lord Himself, Isha Avataraka, the expansion of the Lord, the avatar incarnation of the Lord, as the energy of devotion of the Lord to the Lord, and one more, expansion of the Lord. तो मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, शुभात्मा से बोल रहे हैं, जो ये तत्वों में प्रकट हुए हैं। गुरु के, जो गुरु बहुवचन में यहाँ पर है, भक्त के रूप में, उनके प्रकाश विस्तार के रूप में और उनकी शक्ति के रूप में, ये सबको समग्र करके जो एक साथ में स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। And in that way, the Guru as a Chaya Tattva, the 6th Tattva, can represent actually any of 5 in Pancha Tattva. तो ये छठवां तत्व जो कल हमने श्रवण किया था, कल हम सबने, गुरु वो किसी भी इन 5 तत्वों में से एक को प्रदर्शित कर सकते हैं। Guru is Vartma Pradarsha Guru, Guru is Diksha Guru, Guru is Shiksha Guru. तो गुरु के भी कई प्रकार बताए गए कि जो वर्त में प्रशिक्षक गुरु होते हैं या शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। And in different levels, this Akanda Guru Tattva is giving us Vaidhi Sadhana Bhakti, Raganuga Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, and finally in the role of Chaitanya Mahaprabhu, Prema Bhakti. और ये गुरु तत्व मिल करके ही ये जीव को ये इस वैधि विधि की जो भक्ति की विधि है जो बताई गई है, तो पहले वैधि साधना भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक, ये पूरी जो यात्रा है इसमें ये गुरु तत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। So the individual person, our Guru, is representing, individual Guru is called Vyasti Guru, is representing these 5, and among them Lord Nityananda or Lord Balaram is Samasti Guru. He is the universal or general Guru or Guru for everyone, Jagat Guru. तो 2 प्रकार के जो और गुरुओं का विभाजन बताया गया कि व्यष्टि गुरु और समष्टि गुरु। व्यष्टि गुरु हर एक व्यक्तिगत के साथ में एक गुरु जो होते हैं, उनके अपने गुरु, वो व्यष्टि गुरु होते हैं, और जो पूरे जगत के गुरु होते हैं वो समष्टि गुरु होते हैं। तो 5 के 5 तत्व जो है यहाँ पर वो व्यष्टि गुरु के रूप में प्रकट हो रहे हैं, बता रहे हैं, और उनमें से चैतन्य जो नित्यानंद प्रभु हैं वो समष्टि गुरु हैं, वो सभी के गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। So the Vyasti Guru in this world can have some relative side of his personality, like his preferences in life, but the Samasti Guru is everyone's Guru and he is always on absolute platform. व्यष्टि गुरु जो होते हैं वो सबके साथ में उनके भाव को जान करके एक के साथ में वो आदान प्रदान करते हैं, लेकिन समष्टि गुरु चूंकि वो परम स्तर पर होते हैं, दिव्य स्तर पर होते हैं, इससे वो इससे परे होते हैं, किसी भी परिवर्तन से परे होते हैं। So this Samasti Guru to whom we pray within our heart for inspiration, for intuition, spiritual intuition, have appeared in 1473 in Gaudadesh, Bengal, in the village of Ekachakradam.
तो जिनको हम हृदय में प्रार्थना करते हैं, हृदय में जिनको प्रार्थना करके हम आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जो उमंग, आध्यात्मिक प्रेरणाएं जो हमको मिलती हैं हृदय के अंतर्गत, जिनको कभी कभी हम सब परमात्मा भी कहते हैं, वही साक्षात प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में 1473 में गौड़ देश में एक चक्र ग्राम में। And from young age, he showed interest in enacting pastimes of cowherd boys of Vrindavan, because he is not different from Lord Balaram, Balarama Hoilo Nitaya. और जब वो प्रकट हुए तो बचपन से ही बालपन से ही वो भगवान की वृंदावन की लीलाएं जो होती थी उसके ऊपर वो नाटिका किया करते थे, क्योंकि वो स्वयं बलराम है। And in that way he was passing the days of his childhood, और इस प्रकार से उनका बालपन बीत रहा था, in enacting and remembering pastimes of Balaram and Lord Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं को याद करके, स्मरण करके, And on one occasion, one sannyasi mysteriously came to that village. और एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव में एक चक्र में एक महान सन्यासी वहां पर पधारे। And to his mother Padmavati and father, he nonetheless asked this boy into donation. और उनकी माता और उनके पिता जो थे, जो वहां पर चक्र ग्राम में, उनसे वो सन्यासी ने, जब वो आए, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनको कुछ दान देना चाहते थे। उन्हें कहा कि अपने पुत्र को मुझे दान दे दो, आपका पुत्र मुझे चाहिए। And because his family was from respectable Brahminical family dynasty, they didn't resist and they have offered this boy into donation to this sannyasi. और सोचिए, ऐसे महान ही परिवार थे और इतने वो सम्मानीय परिवार, ब्राह्मण कुल था, जैसे सन्यासी ने ऐसे कुछ उनसे मांगा ये कि अपना पुत्र मुझे दे दीजिए, अपने पुत्र को उनको दे दिया। So this boy Nityananda, he was traveling with this sannyasi all around Bharata, Bharatvarsh Parikram. और ये सन्यासी के साथ में वो नित्यानंद प्रभु छोटे से बालक के रूप में वो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे। And in those days, Bharatvarsh Parikram means they were really walking, Padayatra. और उस समय भारतवर्ष में यात्रा करने का अर्थ होता था कि पद यात्रा, कोई साधन नहीं था। In year 2014, I was fortunate to do Bharatvarsh Parikram, but of course not walking, but different vehicles or even bicycle, boat, car, train. But I went all around India. प्रभुजी कह रहे हैं कि उनको 2014 में सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि साइकिल से, नाव से, ऐसे करके वो पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। And in my tour, I have seen many of holy places. I was following the footsteps of Lord Chaitanya. Wherever there was some holy place, like Adi Keshava temple in far Kerala, I went there. Or so many places in Andhra Pradesh, like Kurmastan or Ahobilam. Ahobilam is also there, but Vijayawada and so many others. Simhachalam, yes, that was missing stuff. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जहां जहां पर चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किए थे, जो सब स्थान है, वहां पर प्रभु जी भी वहां पर जाने का प्रयास किए, जैसे कि केरला में आदि केशव और आंध्र प्रदेश में कुर्म क्षेत्र, सिंहाचलम, अहोबिलम, ये सब स्थान जाते रहे। And one of important places in this tour is always Pandharpur. और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है महाराष्ट्र में, पंढरपुर के नाम से जानते हैं। And for us it's very important because Lord Nityananda was also there. क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वहां पर नित्यानंद प्रभु भी साथ में गए थे। And he had the darshan of Vithalji. Vithalji. और वहां पर विठल जी का दर्शन किया था उन लोगों ने। What is the name of river? Chandrabhaga? No. चंद्रभागा, yes, river. On Chandrabhaga, a very auspicious river on Ekadashi in month of July. It's very auspicious to be there when millions of pilgrims are coming. चंद्रभागा तट पर स्थित है ये क्षेत्र जो है पंढरपुर, और आषाढ़ी एकादशी जो होती है जुलाई में जो आती है, वो जैसे तिरुपति में भीड़ होती है वैसे ही वो महाराष्ट्र के तिरुपति बालाजी ऐसे इतना भीड़ होता है कि आपको जाने में कई दिन लगेगा वहां पर दर्शन करने में आपको। So Lord Nityananda was on the banks of this
Chandrabhaga river, and at that time he saw his spiritual master Lakshmipati Tirtha from Madhva Sampradaya. Yeah. जब वहां पर थे पंढरपुर में, तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के उस तट पर अपने जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ, उनका दर्शन किया उन्होंने वहां। And Lord Nityananda was very much impressed by personality of Lakshmipati Tirtha. और लक्ष्मीपति तीर्थ के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे नित्यानंद प्रभु। However, Lakshmipati Tirtha was even more impressed by Lord Nityananda. और जबकि लक्ष्मीपति तीर्थ नित्यानंद प्रभु को देख करके उनसे बहुत प्रभावित थे। And at that moment, Lakshmipati Tirtha realized that this is my disciple. और उनको देखते ही लक्ष्मीपति तीर्थ को ये आ गया मन में कि ये मेरे शिष्य, यही मेरे शिष्य। In his heart, he immediately accepted him as Shishya. और अपने हृदय में उनको अपना शिष्य मान लिया उन्होंने। And he wanted to tell him that he will initiate him. और उन्होंने कहा अपने मन में कि मैं इनको दीक्षा दूंगा। But before he said this, Lord Nityananda said, "Oh, you will initiate me with this mantra." और जब वो कहने वाले ही थे कि उससे पहले नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप मुझे इस मंत्र से दीक्षित करने वाले हैं। And then he said, "Mantra, which mantra?" उन्होंने पूछा कि कौन सा मंत्र? Actually, we can't say this mantra because it's a rahasya. It's a Gopal mantra. Only Brahmana Diksha Bhaktas can chant this mantra. तो ये मंत्र हम लोग यहाँ पर सबके समक्ष नहीं बोल सकते। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उन्हीं को ये मंत्र बोलने के लिए अनुमति होती है, गोपाल मंत्र। तो वो उनको बोला उन्होंने। And then the Lakshmipati Tirtha said, "Oh, but yes, this mantra. How did you know?" तो नित्यानंद प्रभु जी खुद बोला वो मंत्र। लक्ष्मीपति जी बोलते हैं, अरे ये मंत्र, ये कैसे जानते हैं आप इस मंत्र को? But he is actually the Adi Guru who initiated Sampradaya. तो वो तो आदि गुरु हैं, तो उन्होंने ही पहले वो मंत्र से उनको ही दीक्षा दिया पहले। But for the sake of pastimes and teaching us that we need to accept Guru in our life, he accepted Guru as well. तो वो तो आदि गुरु हैं, वो तो स्वयं सबको दीक्षा दे करके और परंपरा को शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि वो इस लीला में आए हैं, तो लीला में वो गुरु ग्रहण कर रहे हैं। So he had initiated his spiritual master, and then his spiritual master, for the sake of a lila, have initiated him. तो उन्होंने खुद पहले अपने गुरु को दीक्षा दिया वो मंत्र के द्वारा, और लीला में फिर गुरु ने शिष्य को वही मंत्र वापस दिया। In the same way, Lord Chaitanya, taking sannyas from Keshabharati, have appeared first in a dream of Keshabharati and told him that mantra, and then only Keshabharati have initiated into sannyas Lord Chaitanya. इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो पहले जो उनके संन्यास दीक्षा गुरु हैं श्री केशव भारती, उनके स्वप्न में आकर के उनको वो मंत्र का उच्चारण करके बताया, और तब उन्होंने ही उसी मंत्र को दे करके उनको संन्यास दीक्षा दी। So these two who are original gurus have actually beautified and completed the whole sampradaya, Sri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, with their appearance and with their teachings of pure devotional service. तो ये दोनों भाई, अभी हम सब शुरुआत में गीत गा रहे थे, ये दो जन जो है आकर के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने इस पूरे माध्व संप्रदाय को, ब्रह्म मध्व संप्रदाय को अपनी उपस्थिति से इन्होंने इसको पूर्ण कर दिया, जिसमें इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, originally initiated by Lord Krishna himself. तो ब्रह्म संप्रदाय तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के माध्यम से ये परंपरा शुरू की। And from the beginning of creation, he spoke from the aspect of Purusha, Sambandha Gyan. और आरंभ से उन्होंने सबसे पहले पुरुष और संबंध, जो मुख्य पुरुष हैं उनके साथ संबंध, ये ज्ञान दिया। But he is Purusha, he wanted to realize the position of Prakriti, of his Swarup Prakriti, means Srimati Radharani. तो वो तो स्वयं पुरुष हैं, लेकिन वो अपनी स्वरूप प्रकृति जो श्रीमती राधा रानी, उनकी स्थिति को भी समझना चाहते थे। And therefore he appeared as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu to experience the prema prayojana, the ultimate necessity of human form of life, the love of Godhead.
और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उसी प्रकृति तत्व को समझने के लिए स्वयं जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे सर्वोच्च परि रस है, उस आस्वादन करने के लिए और देने के लिए स्वयं आते हैं। And therefore, Lord Chaitanya, in the same Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, is teaching the same knowledge, but now from the position of Prayojana, from the position of love of Godhead. चैतन्य महाप्रभु ये वही ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, लेकिन अब वो दे रहे हैं इसको प्रयोजन के रूप में। प्रयोजन क्या है? वो कृष्ण प्रेम, अब उस परिप्रेक्ष्य को प्राप्त किया जाए, उस तरह से दे रहे हैं। So Lord Nityananda was initiated into same Ashtadakshara Gopala mantra. तो उसी प्रकार से यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो हैं, उनको भी गोपाल मंत्र से दीक्षित किया गया था। And when he got initiated into this mantra, he had ecstatic symptoms of realization of mood of Vrindavan. जैसे उनको दीक्षा प्राप्त हुई, तुरंत उनके हृदय में, उनके व्यवहार से वृंदावन के भाव प्रकट होना शुरू हो गए। And therefore from Pandharpur, he started his parikram towards Vrindavan. और तब पंढरपुर से वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया उन्होंने। And therefore in forests of Vrindavan, he would chant the names of Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे थे। He would loudly call, "Oh Kanai, oh Kanai, Kanai." और बहुत तेज से वो बोलते हुए जा रहे थे, स्वर उच्चारण करते हुए कि हे कन्हाई, हे कन्हाई, ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। And in eagerness, he would day and night call the names of Kanaya. और रात्रि और दिन हर समय सतरूप से भगवान कृष्ण का कन्हाई नाम बोलते जा रहे थे। Because in the Vraja Lila, Kanai and Balai, Lord Balaram, are always playing together and they are inseparable. क्योंकि ब्रज में कृष्ण और बलराम, कन्हाई और बलाई जो है, वो दोनों लोग एक साथ में युक्त होकर के वहां पर सदैव लीला करते रहते हैं। But happened only once in a temple that Lord Nityananda heard a voice which told him that Kanai is not here anymore. He left and he appeared in Navadvip as Nimai. तो जब वो वृंदावन आए, कहां से आए वृंदावन? पंढरपुर से। तो फिर वहां पर उनको एक मंदिर में आवाज सुनाई पड़ी कि आप यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर कन्हाई तो नहीं है अभी। कन्हाई इस समय वृंदावन में नहीं है और वो प्रकट हुए हैं इस समय साक्षात कन्हाई नवदीप में। Nimai. Now is Nimai. हाँ, अब निमाई के रूप में प्रकट हुए हैं। Nimai because he appeared under the tree of Neem. उनका नाम निमाई से पड़ा कि वो नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, इससे चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी कहा जाता है। Immediately Lord Nityananda started to go to Navadvip Dham. और तत्क्षण ही नित्यानंद प्रभु वो वृंदावन से नवदीप धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। When he came to Navadvip Dham, he saw a secluded house of Nandanacharya. और जब वहां पर आए तो अपने आप को उन्होंने नंदन आचार्य जी के घर में नवदीप में अपने आप को छुपा लिया। And he sat in this house and he was thinking, if Krishna is really Supreme Personality of Godhead, he knows my heart, he is Sarvagya, Sarvavyapi, all pervading. And why should I go and meet him? If he knows that I'm here, he will come. This will be test. That this Kanai is now Nimai. तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर एक कन्हाई जो मैंने सुन के वहां पर आया हूँ, कन्हाई यहाँ पर प्रकट हुए हैं, वो तो सर्वज्ञ है कृष्ण, अगर वही यहाँ पर प्रकट हुए हैं नवदीप में, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। वो खुद आके मुझे ढूंढे कि मैं कहां पर छुपा हूं, अगर वो यही उनका परीक्षा होगा। And in his meditation, Nimai have realized that this very auspicious personality have came to Navadvip Dham. और यहाँ पर निमाई जो है, चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, स्वयं कृष्ण, उनको अनुभूति हो गई कि कोई बहुत समझ गए वो कि बलराम स्वयं वो यहाँ पर नवदीप में आ चुके हैं और कहीं छुपे हुए हैं। At that time he was in house of Srivas Thakur and he ordered Srivas Thakur and his brothers and other devotees to go and search for this auspicious personality. और तब उन्होंने श्रीवास ठाकुर से उनके घर में थे, वो उनको और उनके एक भ्राता उनको कहा कि जाओ और ये इस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ।
But when they came, they couldn't find him. वो लोग आए पूरे नवद्वीप में, कहे थे यहाँ तो कोई नहीं आया है, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं आया यहाँ पर, He was hiding. क्योंकि वो छुपे हुए थे, He thought that no, Nimai personally should come and see me. क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर स्वयं निमाई आएंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। And this attitude seems very strange, but actually in our life, we should always look for Krishna, but we should know that Krishna always looks for us, about us, and he knows about us. And that is Krishna consciousness. That not that we are all conscious of Krishna, but that we are also conscious that Krishna is conscious of us as well. ये बहुत अच्छी बात है, बहुत उच्च स्तर की बात है ये, कि कृष्ण भावना भावित के कई स्तर हैं, और ये सब सर्वोच्च स्तर क्या है ये जानना। एक तो है कि हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये भी जानना कि भगवान हमको ढूंढ रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं। ये सोचना और इस भावना में रहना कि कृष्ण हमें ढूंढ रहे हैं, ये सर्वोपरि कृष्ण भावना भावित अभियान है। And when Shiva Thakur and other devotees came back to Shiva Sangha and reported this to Nimai, that there is no this personality, we didn't find anyone. Then Nimai only decided, I will go personally and meet this person. जब वो लोग आके बताए कि यहाँ पर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, तब निमाई ने कहा कि मैं खुद जाके ढूंढता हूँ। So then they came to house of Nandacharya Bhavan, and on the first sight, these two had amazing darshan which I can't comprehend, that these two eternally inseparable brothers are reuniting and meeting. If some of you are having brother and know this Sakya Rasa, after such a long time you are meeting, you can just imagine how much they had ecstatic symptoms, how much of appreciation of that moment, how much of love they had for each other. तो निमाय चैतन्य महाप्रभु सबको लेकर के सीधा, वो कहीं और नहीं गए, सीधा नंदनाचार्य के घर पहुंच गए। साक्षात कृष्ण है, सर्वज्ञ है वो, और बोले कि बाहर निकलो निताई। तो पहली बार प्रभु जी बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, सोचिए आप, कृष्ण और बलराम बहुत समय के पश्चात अब पुनः इस लीला में मिल रहे हैं, यहाँ पर जो बिल्कुल कभी भी अलग नहीं होते, और फिर सामने एक दूसरे के सब समक्ष आ रहे हैं। तो कैसे, कितना उनका जो भाव था, आकर्षण था एक दूसरे के प्रति, उसको शब्दों में बयान करना वो संभव नहीं है। After many years in my life, I realized that my brother is one of rare people on whom I can rely, because although we are so much different, we went through such a difficult times in life, and he was always there for me, and I was always there for him. प्रभु जी अपना अनुभव बता रहे हैं, उनके एक भाई हैं, तो बता रहे हैं कि इतने वर्षों के पश्चात, मैं तो घर छोड़ के आ गया बहुत समय पहले ही, लेकिन इतने वर्षों के पश्चात अभी मुझे ये अनुभूति होती है कि मैं अपने भाई पर सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता हूँ। और क्योंकि ऐसे हमारे जीवन में ऐसे समय आए, घर में परिस्थितियां ऐसी आई कि हर समय वो मेरे पर विश्वास करते थे और मैं उनको पर विश्वास करता था। हालांकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं इस जीवन में हूँ, वो अपने जीवन में हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास कर सकते हैं। When we were small boys, we were in war. For 5 years we were in war, literal war. जब छोटे बालक के रूप में थे तो हम लोग युद्ध में हम लोग को जाना पड़ा, और हम दोनों साथ में 5 वर्ष तक युद्ध में थे। That was a war in Yugoslavia, Croatia and Serbia. सर्बिया, युगोस्लाविया और क्रोएशिया, इसके बीच में युद्ध चल रहा था। उस समय 5 वर्ष की आयु में युद्ध में गए थे। Then when our parents separated, we also had problems with that. We were still together. और जब हमारे माता पिता जब अलग हो रहे थे, तब भी हम दोनों भाई साथ में ही थे। When we had problems, financial problems or problems with law, we were always together, protecting each other. आर्थिक समस्या या फिर कुछ ऐसे कानून की समस्या, तब भी हम दोनों भाई एक दूसरे को संभाल रहे थे। My brother had deadly disease, and we always helped him. और उनको बहुत भयंकर रोग हो गया था, तो मैं उनकी सहायता कर रहा था। So just remembering how much we sacrifice for each other, I can just evoke the emotions with which
Nityananda and Mahaprabhu had for each other. तो कह रहे हैं कि देखिए ये इस जीवन में भी ऐसा थोड़ा सा अनुभव भाई भाई के बीच में जो बता रहे हैं प्रभु की कैसे स्थिति में हम लोगों ने दूसरे का साथ दिया, जब मैं इसको सोचता हूं जो कि बहुत थोड़ा सा है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि कृष्ण और बलराम जो सदैव आपस में साथ में रहते हैं उनके बीच कितना प्रेम है। Real emotions in life based on dharma are produced from sacrifice. तो जो वास्तविक जज्बात है दूसरे के प्रति वो धर्म के ऊपर आश्रित है और वो त्याग से और अनुभूति की जाती है। Every human being is hankering for deep emotion, bhava, but it's possible only in full surrender and sacrifice to Lord Shri Krishna. तो सब लोग ऐसे जज्बात के लिए तरस रहे हैं, ऐसे अनुभव के लिए तरस रहे हैं जहां पर बहुत प्रेम हो। ऐसा अनुभव चाहिए सबको, लेकिन प्रभु जी बता रहे हैं कि ये अनुभव तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं और बहुत कुछ सब कुछ त्याग करने की इच्छा जागृत हो हमारे अंदर और केवल भगवान कृष्ण के प्रति, तभी वो जो अनुभव है वो संपूर्ण होता है। So we can just imagine what kind of wonderful and deep bonding these two personalities are having. तो आप समझ सकते हैं कि ये कृष्ण और बलराम और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बीच में जो संबंध है कितना गहरा है। And after that, naturally, Lord Nityananda have joined Harinam Sankirtana movement of Lord Chaitanya. और उसको तुरंत देखते ही फिर उनके साथ में आ गए नित्यानंद प्रभु और फिर निमाय निताय दोनों मिलकर के उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन जो है उसका आरंभ कर दिया। Lord Nityananda along with Haridas Thakur would go in villages of Bengal, from village to village, from door to door, house to house, and performing Nagar Kirtan. और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और आज्ञा के अनुसार नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर ये पूरे उस समय गौड़ देश में हर प्रांत में, हर जिले में, घर घर में जाकर के सबको उत्साहित कर रहे थे कि आप कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए। And people of Navadvip would say, all of these two also became intoxicated and bewildered like Nimai Pandit. They also went mad. और वहां पर सब लोग बोल रहे थे कि जैसे निमाई पहले थे अकेले, अब तो इतने ये भी इनके साथ में आ गए, निताई भी आ गए, ये भी उनके जैसे ही पागल हो चुके हैं, ये दोनों पागल हो गए हैं, बस नाचते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। The only thing they do is just chanting Hari Hari, Hari Hari. और सबको देख के वो सब लोग बोलते थे हरि हरि, Hari Hari, Hari Hari. And sometime people would warn them, don't go to these two brothers. These two brothers are greater drunkards and criminals, Jaga and Madai. तो जब ये सबके पास जा रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे ठीक है हमारे पास आप आ गए, लेकिन यहाँ पर दो भाई हैं उनके पास मत जाइएगा, वो सामने जो दिख रहे हैं ये सारे पापों में युक्त हैं और सदैव मदिरा का पान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, इनके पास मत जाइएगा आप लोग। And these two brothers were known that although they were born in Brahminical families, they committed worst kinds of sinful activities. They killed, they tortured, they drank alcohol, they abused people in so many ways. और इन्होंने सारे तरह के पाप कर रखे, इन्होंने कुछ भी से छूटा नहीं है, मदिरा का सेवन करना, सबके धन को अपहरण करना, लोगों को ऐसे गालियां देना, सब कुछ कर चुके हैं, करते रहते हैं। And Lord Nityananda and Haridas Thakur used to tell them, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Laho Krishna Nam, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. तो ये नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर जाकर उनको बोल रहे हैं कि देखो आप कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो, कृष्ण का ही नाम लो, यही हमारे प्राण धन है, आप इनका ही नाम लो, यही हमारे माता है, यही हमारे पिता है, ऐसे उनको समझा रहे हैं। And the Jaga and Mother, they said, what? We should worship Krishna. They started to chase them. And therefore Lord Nityananda and Haridas Thakur ran. तो वो दोनों भाई बिल्कुल मदिरे में बिल्कुल मदिरा का पान करके मस्त थे बिल्कुल। तो कह रहे हैं क्या तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कि मैं कृष्ण का नाम लूं? अभी बताता हूं तुमको। और उन्होंने उठाया कुछ उनको मारने के लिए, दौड़े उनके पीछे,
दोनों लोग वहां से ऐसे भागे थे। And somehow or other they saved themselves. तो किसी प्रकार से वो अपने ऐसे बच करके वहां से निकले। And they gave a report of this to Lord Chaitanya Mahaprabhu. और रोज वो जा करके चैतन्य महाप्रभु को बताया करते थे कि आज हम कहाँ पर गए, कैसे प्रचार किया हमने। तो उन्होंने बताया कि आज के दिवस पर ये हमारे साथ घटना घटी। But Lord Nityananda, because he is Parama Karuna, most merciful, he wanted to give this gift of Lord Chaitanya to these two brothers because they are most fallen, and it will be proven that Lord Chaitanya is most merciful incarnation if these two brothers accept chanting of the holy name. तो नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से जानबूझकर उनको देना चाहते थे जगाई और मधाई को, ये जानते हुए कि वो उनका ऐसा व्यवहार है। फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए चैतन्य महाप्रभु ये पतित पावन अवतार हैं और इनसे बड़ा इस समय पतित यहाँ पर कोई नहीं है। तो अगर इनको मैं ये नाम दे दूं और ये अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त कर लें तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि पतित पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु है। And therefore they went performing Nagar Sankirtan, and then again they met these two brothers. और तब पुनः नगर संकीर्तन करते हुए गए और फिर दोनों भाइयों को मिले जगाई मधाई को। And again they told them, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Laho Krishna, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pranadan. तो फिर जाकर उनको बोला कि देखो आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम भजिए, वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे प्राणधन हैं। And in this moment, Madai took a clay pot and directly hit Lord Nityananda in his head, and his head started to ooze the blood which was pouring down. और उस समय मधाई के हाथ में जो मदरा का पान कर रहे थे घड़ा था, उसी घड़े से नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया और उनके पूरे यहाँ से रक्त बहना शुरू हो गया। Devotees have reported this immediately to Lord Chaitanya, who is Lord Krishna, is holding a Sudarshan chakra, the wheel of time, and immediately he wanted to cut the heads of these two brothers. और उस समय ये सूचना चैतन्य महाप्रभु के पास किसने पहुंचा दिया? भक्तों ने। चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और स्वयं कृष्ण है, उनका सुदर्शन वहां पर आ गया उनके हाथ में और क्रोध में थे वो, और तुरंत ही दोनों जगाई मधाई का वध करने जा रहे थे। But Lord Nityananda told him that, no, in this incarnation, you're most merciful and you came to give Krishna prema. So you will prove that you are most merciful incarnation, Mahavadanya, if you forgive these two and you give them Krishna prema. और तब नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा कि नहीं महाप्रभु, आप इनका वध मत करिए। इस कलयुग में आप विशेष रूप से आए हैं उनके हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए, हृदय के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए। तो इसलिए आप कृपा करके इनका वध मत करिए और इनके जो अंधकार हैं, अंधकार रूपी जो ज्ञान है, उसका वध करेंगे। And when Jagai heard these compassionate words of Lord Nityananda, whom they attacked, his heart melted and he immediately became sober from his intoxication. नित्यानंद कहा कि देखिए आप तो आए हैं किसी में प्रेम बांटने के लिए, केवल कृपा करने के लिए, आप कृपा करके इनका वध मत करिए। तो जैसे ही सुन रहे थे दोनों भाई, तो जगाई जो थे उनके मन में बड़ा ऐसा भाव कि देखो हमने प्रहार किया फिर भी हमको ये बचा रहा है। तो उनके मन में उनके प्रति अच्छा भाव आ गया उसी समय से, और जैसे ये भाव आया नित्यानंद प्रभु के प्रति, उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। Immediately he fell down and taken shelter of Lord Nityananda. He touched his feet. और तुरंत वो उनको प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, उनके पैरों पर गिर पड़े वो। And Lord Nityananda, he didn't show any sign of anger. और नित्यानंद प्रभु कोई क्रोध प्रकट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांत थे वो। And therefore he is known as Akrodha Paramananda. इसलिए हम लोग गाते हैं भजन में कि अक्रोध परमानंद, कोई क्रोध नहीं और हमेशा परम आनंद में रहते हैं। Because he represents the eternal bliss. He can't be angry. क्योंकि वो परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, परम आनंद को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कभी भी क्रोध में नहीं हो सकते। However, he becomes disturbed and angry if someone is offending Vaishnavas. Then he will never get the kripa of Lord Nityananda.
लेकिन अगर कोई वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, तब नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको नहीं मिलती है। However, the Madai, he didn't take shelter of Lord Nityananda. Madai didn't take shelter. लेकिन मधाई जो थे, भाई मधाई में, उन्होंने उसके पश्चात भी उनकी शरण नहीं ली उस समय। However, it was only Jagai who got that mercy, who convinced Madai that he did wrong. Because he did wrong, he hit Lord Nityananda and he didn't apologize, he offended Vaishnava. तो उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर प्रहार भी किया, क्षमा याचना भी नहीं किया, और अभी भी उनकी शरण नहीं ले रहे हैं वो। So, due to mercy of Lord Nityananda, both of them became great Vaishnavas. They have assembled all Vaishnavas and washed their feet. और ये देख करके चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने बताया, विनती किया कि देखिए जगाइए, तो मेरी रक्षा भी की थी, इन्होंने मुझे बचाया भी, आप इनको पर कुछ भी ऐसा निर्णय मत लीजिए। और तब दोनों ने ही शरण लिया। उनको देख करके, जगाई को देख करके मधाई को भी समझ में आया, फिर दोनों ने मिलकर के चैतन्य महाप्रभु की शरण लिया नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। That was their prayashchita, atonement. और यही उनका प्रायश्चित था। That can be made a rule. Whoever is offending Vaishnavas in Kanadadesh, he should force Vaishnavas to offer them obeisances and force them to wash their feet. तो ये नियम बनना चाहिए, और यही नियम देश में भी होना चाहिए हर जगह पर। अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए और जैसी अनुभूति हो जाए, जाकर के उन वैष्णव के चरण कमलों को तुरंत गिर पड़े उनके चरण कमलों में, और हाथ में जल लेके जाएं, पानी का बोतल लेकर के जाएं, और तुरंत ही उनके चरणों को धोएं, जहां पर भी मिल जाए उनके चरणों को धोएं। So that is the mercy of Lord Nityananda. He doesn't see if someone is a guru or lagu, or he is high or low in social status. He doesn't see your wealth. He doesn't see are you rich or poor, you're young or old. He's always equally disposed to everyone. तो ये विशेष अनुकंपा है नित्यानंद प्रभु जी की, कि वो किसी के पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। वो लघु हैं, गुरु हैं, वो उनके पास बहुत धन है, निर्धन है, बहुत ज्ञानी है, अज्ञानी है, कुछ भी विचार नहीं करते, और सबको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम देना चाहते हैं। And if we want to follow in his footsteps and do prachar, share the sentiment of Krishna consciousness with others, we should not distinguish, oh, him I like, him I don't like. प्रभु सबसे विनती, थोड़ा शांति से श्रवण करें सब लोग। जो पीछे जो खड़े हैं भक्त, तो बैठ जाइए शांतिपूर्वक। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम का भाग होता है वो श्रवण करना है। तो जो भी नित्यानंद प्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, वो हमें समझना होगा कि जब भी हम प्रचार कार्य में जाएं तो कोई भेदभाव नहीं। ये धनवान है, इनको ज्यादा समय दूं, इनका प्रचार करूं, ये इनके पास धन नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव, कोई प्रचार नहीं। क्योंकि इस परंपरा में हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु ने कैसे किया। कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको देना चाहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम। Because if we have a distinction among people, means that we have some self-interest. We see that, oh, from this person I can get something, and therefore we cannot be merciful to others. ये बहुत आवश्यक है जानना ये कि जहां जैसे ही हमने भेदभाव करना शुरू किया, किसी भी कारण से, इसका मतलब कोई मेरा निहित स्वार्थ छिपा है उसके प्रति, कोई छिपा हुआ स्वार्थ है मेरा, और इसलिए जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर कृपा नहीं आती है। तो भगवान की कृपा जिसको हम बांटने जा रहे हैं वो कृपा बांट नहीं पाएंगे। And we see that the best example of that is definitely Srila Prabhupada. और उसका सबसे उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं, वो कौन है? हमारे संस्थापक आचार्य इस्कॉन के जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी। कोई भेदभाव नहीं किया। इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, कोई भी देश ले लीजिए आप, कोई भेदभाव नहीं। Srila Prabhupada went to
US, and he was not looking aristocratic families or Brahminical families to associate with and teach them. तो जब अमेरिका में भी गए श्री प्रभुपाद जी, तो वहां पर ऐसा नहीं कि अमेरिकन जो बहुत धनी हो या जो बहुत ज्ञानी हो, ब्राह्मण जैसे हो, उनको ये ज्ञान दिया जाए, नहीं, सबको. And especially he was preaching to hippies who were not at all regulated in their life. और देखा जाए तो उस समय तो जो सबसे ज्यादा वहां पे जो जिनकी अवस्था बड़ी दयनीय थी, जिनको हिप्पीज कहते थे उस समय लोग, हाँ, वो उन पर कृपा करना शुरू किया श्री प्रभुपाद जी ने सबसे पहले. Therefore, it said that Srila Prabhupada is Nityananda Vesh. He is empowered by Lord Nityananda. He is empowered. हाँ, इसलिए कहा जाता है कि वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वो. And whoever did book distribution of Srila Prabhupada's books on streets, he knows that as soon as he starts to distinguish among people, he will not be able to distribute even one book. जो लोग पुस्तक वितरण की सेवा करते हैं, अगर वो कभी ऐसे जाकर के रोड के ऊपर और गलियों में जाकर के पुस्तक वितरण करते हैं, तो उनको ज्ञान है कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करते कि इनको दिखाऊं, इनको नहीं दिखाऊं. अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी एक पुस्तक का वितरण नहीं कर पाएंगे. Because people will see your ego. People will see you want something from them. Either you want money, you want to make them follower, you want any other benefit from them. क्योंकि वो समझ जाते हैं वो लोग कि कुछ स्वार्थ छिपा है इस बंदे का, मेरे पास नहीं आ रहा है, बाकी लोग के पास नहीं जा रहा है. And then this mercy of Lord Nityananda will not flow. और तब नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है उसका प्रवाह नहीं होगा. But as soon as you just try to distribute this mercy form of books so easily and smoothly, लेकिन जब आप बिना भेदभाव किए बस आप नित्यानंद प्रभु की कृपा को आप वितरित करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सी पुस्तकों का वितरण होगा. people will be very much impressed and they will see that you are their well-wisher, and then they will take these books. और तब वो लोग समझ पाएंगे कि हम उनके शुभचिंतक हैं और सबको कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और तब निश्चित रूप से वो पुस्तक लेंगे. So that is the mode in which we should try to spread this mission, not to expect anything in return, but just try to give this mercy. That is our duty. तो यही भाव हमारा होना चाहिए. किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें ये वापस ये मिलेगा, हमको इनसे ये मिलेगा, ये प्राप्त होगा, नहीं. बस चैतन्य महाप्रभु कृपा, नित्यानंद प्रभु कृपा, बस बांटते रहें, बांटते रहें. And by serving Lord Nityananda in this way, he will recommend us to other of his services to Lord Krishna. और इस प्रकार से अगर इस भाव से हम नित्यानंद प्रभु की सेवा करते रहें, तब वो हमको भगवान श्री कृष्ण की चरण महाप्रभु कृपा से भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सेवाओं में और सेवाओं में जो गुण सेवाएं हैं उसमें हमको इंगित कर सकते हैं. Lord Nityananda, just like Lord Balaram, in his relationship to Krishna, he is in mixed rasa or mixed bhava. जैसे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के लिए पांचों रस में सेवा करते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जी भी उनके मिश्रित भाव में सब सेवा करते हैं. Lord Balaram and Krishna, they are generally in Sakya rasa, but mixed with Dasya rasa and Vatsalya rasa. But that is yours. It's his, no? Prabhu, I wouldn't give him. Very suspicious. Sorry, I missed it. Yeah, sure. So, the Lord Balaram and Lord Krishna, generally they're in Sakya Bhav, but they're mixed with Dasya Bhav and Vatsalya Bhav. Lord Balaram is senior. तो बलराम जी देखा जाए तो समान रूप से साख्य भाव में है, लेकिन तब भी वो वात्सल्य भाव और दास्य भाव ये दोनों में सेवाएं करते हैं. But Lord Nityananda or Lord Balaram is also serving in Madhurya Ras with his expansion of Ananga Manjari as younger sister of Srimati Radharani. जैसे हमने श्रवण किया पहले कि पांचों रस में तो अनंग मंजरी के रूप में वो माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं. And to spread this Harinam Sankirtan movement all over the world. इसीलिए नित्यानंद प्रभु के जो पद कमल हैं
निताई पद कमल जो है वो हम सब के लिए पूर्ण शरणागत, पूर्ण आश्रय हैं, जिसके माध्यम से हम अपना स्वयं का भी जीवन और परोपकार, अच्छा की प्रचार प्रसार का कार्य, ये सब पूर्ण रूप से हम कर सकते हैं अगर उनका हम पूर्ण शरण ग्रहण करें, उनके शरण का। Because only by His mercy we'll get the mercy of Lord Chaitanya, and then only we'll get the mercy of Shri Shri Radha Krishna. क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से फिर हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। Prabhu, we have more time or 1 o'clock? कृष्णमूर्ति प्रभु जी, समय हमारे पास है 1 बज रहा है, 10 मिनट, 10 मिनट। Great. So in order to honor the lotus feet of Lord Nityananda, we will do one type of smaran. तो आज के दिवस पर हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। अभी हमने श्रवण किया कि उनके चरण कमलों का शरण लेकर के हम ये अपना जीवन सार्थक और परोपकार, ये सब उनकी अनुगत्य में, उनके कृपा से ये संभव हो सकता है। तो आज के दिवस पर हमें उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, पूरा ध्यान उनके चरण कमलों करना चाहिए। In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya have asked Ramananda Rai, what is the best type of dhyan? चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से संवाद में पूछते हैं कि सबसे उत्तम ध्यान क्या है? And then his answer, Padambujaya Dhyan, the meditation on the lotus feet of their lordships. रामानंद राय ने कहा कि जो पद्म पूज ध्यान है वो सबसे उत्तम ध्यान है, अर्थात भगवान के चरण कमलों का ध्यान। This dhyan is also known as smaran, and 3 main vidhis of limbs of devotional service in Bhagavad Vidhi are Shravan, Kirtan, Vishnu Smaran, chanting, hearing and chanting about the Lord and remembering Lord Krishna. तो ध्यान को ही हम स्मरण के रूप में भी जानते हैं। सबसे अच्छा स्मरण है ये, जिससे भागवत विधि के 9 जो नवधाभक्ति के अंग बताए गए हैं उसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। So this smaran can be of 4 kinds. तो ये स्मरण 4 प्रकार के हो सकते हैं। नाम स्मरण, रूप स्मरण, नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण एंड लीला स्मरण। नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण और गुण स्मरण। नाम स्मरण means when we do manasika japa, when we internalize mantra and we don't chant mantra loudly outside. तो नाम स्मरण जब हम आंतरिक रूप में मनन करते हैं भगवान के नाम पर, जब हम जीवा से उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करते और मानसिक रूप से भगवान के नाम को जपते हैं और उस पर मनन करते हैं, वो नाम स्मरण है। रूप स्मरण means the remembrance of the form of the Lord. और भगवान के रूप अर्थात उनके जो भगवान के सुंदर आकर्षक रूप हैं, जो भगवान का स्वरूप है, उस पर ध्यान करें। And there are different and wonderful descriptions of form of Lord Krishna, Lord Chaitanya and Lord Nityananda. और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके सुंदर रूप का वर्णन किया गया शास्त्रों में, उस पर ध्यान करना। And one kind of Rupa Smaran is Charan Smaran, or remembering the feet of the Lord. और उस रूप स्मरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रूप स्मरण में उनके चरण का स्मरण, remembering different symbols on hands and feet of the Lord. भगवान के हस्त कमल और पाद कमल पर अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं, दिव्य शुभ मंगलमय चिन्ह, उनका स्मरण करना। The Lord have different kinds of symbols on his feet, and the how is it called? Samudrika Shastra, the there is one translation. You know what is Samudrika Shastra? The scripture of Samudrika Shastra is explaining how to read someone's body, his body language, and the symbols on hands and feet. तो समुद्रिक शास्त्र करके आता है जो शास्त्र, उसमें बताया गया है कि कैसे लोगों के आप हस्त और चरण के जो चिन्ह हैं उनको
उनको देख करके आप उनके व्यक्तित्व के बारे में आप बता सकते हैं। And just remembering these symbols, all the obstacles in spiritual life will be destroyed. और केवल इन लक्षणों को, इन लक्षण जो चिन्ह बताए गए हैं भगवान के चरण कमल और हस्त कमल में, केवल इनको स्मरण करके, इन पर ध्यान करके हमारे आध्यात्मिक जीवन की सभी बाधाओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। Lord Krishna has one line going from the middle of his feet directly to in between big toe and a second toe. जैसे उदाहरण के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में एक ऐसी रेखा है जो उनके अंगूठे और बड़ी वाली अंगुली के बीच में जाता है, सीधा सीधा। And this line is called Urdhva Rekha, the upward line. And this line means that whoever takes the shelter of feet of Lord Krishna, he will go high and directly to him to Goloka Vrindavan. और वो ऊर्ध्व रेखा है, ऐसा बताया गया है कि जो भी उनकी शरण लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ऊर्ध्व रेखा, वो सीधा इस भौतिक जगत से गोलोक वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। And there are so many other symbols like barley. Barley is symbol of auspiciousness. When we do yagya, we use barley. और ऐसे कई ऐसे शुभ चिन्ह हैं, जैसे जो बाली होता है, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बाली डालते हैं, उस प्रकार हवन सामग्री में तो उसका वो शुभ होता है। ऐसे बहुत से शस्त्र हैं, अर्धचंद्र है। Then there is a flag of victory, Jaya Pataka. जय पताका वहां पर है। Then there is a Shatkona, 6-pointed star, Ashtakona, 8-pointed star. षटकोण है, अष्टकोण है। There is half moon. अर्धचंद्र है। And so many symbols like that. ऐसे कई चिन्ह हैं। अगर आपको याद है, एक बार बीच में हम लोगों ने कथा श्रवण की थी चिन्ह के ऊपर। Then there is a Guna Smaran, remembering 64 qualities of Krishna and Panchavimshati Guna, the 25 qualities of Srimati Radharani. और ऐसे उनके गुण बताए गए हैं, 64 गुण और 25 गुण राधा रानी के। तो इस प्रकार से उनके गुण पर स्मरण करना। And the final is Lila Smaran. और अंततः लीला का स्मरण करना। There is a Nitya Lila Smaran, remembering the daily pastimes of the Lord, Ashtakala Lila. There is Naimittika Lila, remembering occasional pastimes of the Lord. उसमें नित्य लीला स्मरण है और नैमित्तिक लीला स्मरण है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नैमित्तिक लीला जो भगवान लीलाएं जो करते हैं विशेष अवसर पर, और नित्य लीला जो भगवान की अष्टकालीन लीला चल रही है, नित्य लीला। And Lord Nityananda, स्मरण करना। pardon me, Srila Bhaktivinoda Thakur is saying the chanting of Hare Krishna Mahamantra on higher levels of devotion is non-different from remembering the daily pastimes of the Lord, because chanting Hare Krishna will give us direct insight into daily pastimes of Radha Krishna. It's called Mantramay Upasana. इसको मंत्रमय उपासना कहा गया है। श्री भक्ति ठाकुर महाराज कहते हैं कि भगवान के इस पवित्र नाम का स्मरण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का, उनकी जो नित्य लीला है वो उसमें पूरी निहित है। इस नाम के माध्यम से उसमें प्रवेश मिलता है। इसको मंत्रमयी उपासना कहा जाता है, मंत्र उपासक। So this smaran can be done on the level of Vaidhi and Raga as well. और इस स्मरण को हम लोग वैधि, जो वैदिक भक्ति में है वो भी कर सकते हैं, और जो राग के स्तर पर है वो भी कर सकते हैं। And if we do this smaran, it will help us do our Shravan Kirtan better. When we chant, then naturally the remembrance of the Lord will come. ये भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि जब स्मरण अच्छे से होता है तब हमको श्रवण कीर्तन में वो बहुत मदद करता है, बहुत सहायता करता है। तो जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, उनका स्मरण होगा, फिर आपको लीला का, उनके रूप का, उनके गुण का। So there are 4 kinds of smaran and 5 levels of smaran. 4 प्रकार के स्मरण हैं और 5 स्तर पर हैं। So these 5 levels are smarana, dharana, dhyana. तो स्मरण, धरण, वरण। No, not this one. Smarana, dharana and dhyana. But the 4th one, no, that's Panchadasha. No, that's another thing. That's Panchadasha Bhava Sadhana. This one is called
You will remember. There is a fourth level, a fifth level is samadhi. तो और पांचवा स्तर जो है वो समाधि का है. Smaran, first level means sporadically think about the Lord from time to time, sometime. तो पहले स्तर पर भगवान के बारे में कभी कभी ख्याल आएगा, सदैव नहीं, नित्य नहीं, कभी कभी भगवान के बारे में स्मरण होगा. ये पहला स्तर है. To remember the Samanya Devata, the Lord as general God, general idea of Krishna. और एक समान विचार आएगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है. एक ऐसा विचार आएगा. Then dharana means to hold, means that we have continuous remembrance of the Lord. और धारण में क्या होगा? धारणा में क्या होगा कि हम उस भगवान की अनुभूति को या भगवान की उपाधि, उनका जो उपाधि है उसको सदैव समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है. Dharati means to hold. उसको बना के रखना. उसको बना के रखना. धरती मतलब बना के रखना. Then dhyan means to meditate on the specific form of the Lord, just like Madan Mohan, Govinda, Gopinath, Radharaman. और ध्यान का अर्थ है कि उनके एक विशेष रूप पर आकर्षण होना, जैसे मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा रास बिहारी, एक रूप के ऊपर. Then the fourth level is, which Sanskrit name I'm not remembering, but it's like a pouring of thick honey. There is no cut in that pouring. It's very, very smooth and direct. जैसे बहुत गाढ़ा शहद हो और उसको आप गिराएं आप, तो देखिए कभी भी उससे धार छूटती नहीं है. वो हमेशा बहता रहता है धीमे धीमे, बट बहुत गहरा है और कभी भी धार छोड़ता नहीं है. वैसे उनकी चेतना सदैव कृष्ण की ओर उसी प्रकार से जाती रहती है, कभी भी विस्मृति नहीं होती. And samadhi means to be completely absorbed in thoughts of Krishna and even forgetting about ourselves and forgetting even that we are meditating. It means that we are having direct pratyaksha, divya pratyaksha of Lord Krishna and his pastimes. और समाधि का अर्थ है कि पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की चेतना में युक्त होना और अपने आप को भी भूल जाना और ये भी भूल जाना कि मैं उनका ध्यान कर रहा हूं. अर्थात तो स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण चल रहा है, स्वाभाविक रूप से. So on this auspicious occasion of Nityananda Trayodashi, we'll do one smaran, we'll do charan smaran, remembering the feet of Lord Nityananda. तो आज के इस दिव्य अवसर पर हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरण का जो ध्यान करेंगे, पाद पूजो, उनके चरण कमल का ध्यान करेंगे. And for kirtan, you don't need peace, but for smaran we need peace. तो कीर्तन के लिए हमें शांति नहीं चाहिए, लेकिन स्मरण के लिए शांति चाहिए. तो पीछे सबसे विनती है, हरे कृष्णा, पीछे कोई भक्त सभी बच्चों को चुप कराएंगे. ऑल द चिल्ड्रेन प्लीज मेंटेन साइलेंस. और जो सेवा में नहीं है भक्त, तो बैठ जाएं अपने स्थान पर. जो सेवा में नहीं है वो बैठ जाएं. हम ध्यान करने जा रहे हैं, सब बैठ जाएं. स्मरण करने जा रहे हैं. स्मरण की मुद्रा में आ जाइए सब लोग, ध्यान की मुद्रा में आ जाइए. पद्मासन में बैठ जाइए सब लोग, पद्मासन में बैठ जाएं सब लोग. So we can test ourselves on which level of smaran we are. Smarana, dharana, dhyana, fourth level, or samadhi. No, it's not. No, I'm sure. That is Shravana, Varnana, Shravana, Varnana, Smarana, Sampati and Samadhi. Yeah, that's a different thing. So I will try to read. तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस स्तर पर हैं, इस स्मरण के किस स्तर पर हम लोग विराजमान हैं. I will try to read from Nityananda Kamala of Srila Narottam Das Thakur. I will first read the Bengali verse and then translation in English. तो अभी हम लोग निताई पद कमल जो भजन है, पहले हम बंगाली में प्रभु जी पढ़ेंगे उसको, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे उसका, और तब आप देखिए उस पर ध्यान करिएगा. Nitoi pada kamala koti chandra sushitala je chayai jagata jurai
Henunitai bine bai, Radha Krishna poite nai, Drita kuri daro nitai pai. The lotus feet of Lord Nityananda are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one, but of millions of moons. If the world wants to have real peace, it should take shelter of Lord Nityananda. Excuse. तो पहले पद में बताया गया कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो हैं वो ऐसे आश्रय हैं जहां पर करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के जो शीतलता होती है वो प्रदान की जाती है। अगर पूरे जग को ये वास्तविक शांति चाहिए तो इसके अलावा और कोई आश्रय नहीं है। Unless one takes shelter under the shade of the lotus feet of Lord Nityananda, it will be very difficult for him to approach Radha Krishna Paitenai. If one actually wants to enter into the dancing party of Radha Krishna, he must firmly catch hold of the lotus feet of Lord Nityananda. Catch hold of the lotus feet means dharana. तो जब तक हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का शरण नहीं लेते हैं तब तक श्री राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश नहीं है। और अगर कोई वास्तव में चाहता है कि वो श्रीमती राव में अगर वो प्रवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनके वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ना होगा। प्रभु जी ने कहा कि पकड़ने का मतलब है प्रभु का स्मरण। সেই সম্বন্ধ নহি জ্বর ভৃত জন্ম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মোহছিল সংসার সুখে বিদ্যা কুলে কি করিবে তার। Anyone who has not established his relationship with Nityananda Prabhu is understood to have spoiled his valuable human birth. Such a human being is actually an uncontrollable animal, because he never uttered the holy name of Nityananda. He has become merged into so-called material happiness. What can his useless education and family tradition do to help him? जिसने नित्यानंद प्रभु के साथ में अपने संबंध को स्थापित नहीं किया है उसने अपने मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, जो मूल्यवान है, उनको गवा दिया है। और ऐसे मनुष्य को वास्तव में एक अनियंत्रित पशु कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया, उनके पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया। वो तथाकथित इस भौतिक सुख में इस प्रकार से डूब गए हैं कि उनकी सारी शिक्षाएं, सारे उनके पारिवारिक धारणाएं वो सब व्यर्थ हैं और ये सब उनको बचा नहीं पाएंगी इस माया के प्रभाव से। অহংকার মতা হইয়া নিতাই পদা পসরিয়া অসত্যেরে সত্য করি মানি নিতাইর করুণা হবে ব্রজ রাধা কৃষ্ণ পাবে ডর নিতাই চরণা দুখানি। Being maddened after false prestige and identification with the body, one is thinking, oh, what is Nityananda? What can he do for me? I don't care. The result is that he is accepting something false to be truth. If you actually want to approach the association of Radha Krishna, you must first achieve the mercy of Lord Nityananda. When he is merciful toward you, then you will be able to approach Radha Krishna. Therefore, you should firmly grasp the lotus feet of Lord Nityananda. व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। अतः उनके चरण कमलों को पकड़ के रहो। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी सत्य हैं, अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। नितोय चरण सत्ता तहर सेवक निता नितोय पदक सदा करो आशा नरोत्तम बड़ो दुखी नितय मोरे करो सुखी रकुरंग चरणेरा पाशा। The lotus feet of Nityananda are not illusion.
They are a fact. One who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. Always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. This Narottama Das is very unhappy. Therefore, I am praying to Lord Nityananda to make me happy. My dear Lord, please keep me close to your lotus feet. श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल सत्य हैं और उनके सेवक भी सत्य हैं, अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। Nitai Pada Kamala Ki Jai. I hope you had a glimpse of darshan of importance of holding the lotus feet of Lord Nityananda. कवि कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा एक झलक मिला होगा कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ये क्या वस्तु है, इस पर ध्यान करने का प्रभाव क्या है और जो इससे चूक गए उसका दुष्परिणाम क्या है, इसका एक झलक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। We will take the shelter of Lord Nityananda and hope that in next couple of days, by His mercy, we'll learn about Japa Vidhi directly from Hari Bhakti Vilas, where the complete process of chanting the holy name is explained by Srila Sanatana Goswami. So by this way, we inspire you all to join us in next couple of days, and we'll read from Hari Bhakti Vilas and try to see how we can improve our daily chanting of the holy name. तो आज दिवस पर नित्यानंद प्रभु के चरण हम लोग लेते हुए हम लोग आने वाले जो दिवस है, कल परसों और आने वाला दिन, उस दिन पर हम लोग जैसे आज हमने सुना, हम सब ने जो 4 प्रकार के स्मरण है उसमें से एक स्मरण क्या है, नाम स्मरण। तो कैसे हम लोग अपनी जप विधि को सुधारें, श्री सनातन पाद गोस्वामी के द्वारा रचित हरि भक्ति विलास में बहुत विस्तार में व्याख्या की गई है। तो उस जप विधि के ऊपर कल से सेमिनार शुरू होगा, कल प्रातः काल से, और आप सब को निमंत्रण है, आप सब आइएगा। तो कल से हम लोग ये सीखेंगे नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेते हुए उनके चरण कमलों का, कि कैसे भगवान के नाम जो जप विधि, कैसे अच्छे से भगवान के नाम का हम आश्रय ले सकते हैं, कैसे हम अपने जप को सुधार सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके ऊपर कल से सेमिनार होगा, आप सब आइएगा। श्री नित्यानंद राम की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अनुस्मृति अनुस्मृति।